Hello my dear students, I hope that you all are doing well. I am Nisha Mahajan. So today we will start with the chapter 1, that is number sense, from your book Mathematics Olympiad Workbook class 5, right? And we'll start with the section mathematical reasoning. So first question is the greatest 6-digit number that can be formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 9, 7 each only once is. Okay, so we need to find greatest number. It means we have to arrange all the digits in the decreasing order. Decreasing order means you have to start with the greatest digit first and then so on. So here the greatest digit is 9, right? So always remember, when you have a multiple choice question, try to follow the elimination technique. So here 7 will get deleted and C option will get deleted. Okay, because our desired number should start from a 9. 9. Then what's the next number should be? Yes, 7. Then it should be 3, then 2, then 1 and 0. Let's compare this answer with the remaining option. So it will be B. So your final answer should be B, right? Next question is the number name, that is 5, 3, 5, 8, 4, 1, 6 in international system. So in international system, how we are going to write? This is ones, tens, hundred, thousand, right? 10,000 means TTH and 100,000 means HTH, and this is million. Now let's read our option. It's 53 lakh. So it's not a according to international system. Next is 53 crore. It's not a crore. It's 53 million. No, it's not a 53 million. It's 5 million. How are we going to read this? It's a 5,358,416. So option D will be your correct answer. Now question number 3, select the correct option. We have an option based upon the Roman counting. Okay, so इस question को करने से पहले we should know the values of what m is 1,000, right? Then C is there, C is 100, L is 50 and X is 10, right? And another option we have a D also. So let's write the value of D. D is called a 500. Okay, D का value क्या है? 500. So अभी हम options के साथ start करते हैं. तो A option क्या है? Capital MMCLX. अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और काउंट करेंगे तो देखेंगे क्या राइट हैंड साइड पे 1970 है, क्या वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, सो M इज व्हाट? M इज व्हाट? 1000 plus 1000 plus C is what? 100 plus L is 50 plus 10. Okay, so 1000 2000 plus 150 plus 10 is 160. Okay, so it will be 2160. Do we have on the right hand side? No, तो ये तो option नहीं है. Now let's try with the B. B क्या है? D C C C L X I. तो D क्या है? D है हमारे पास 500. C triple C means 100 100 100. Can we write the 300 together? Yes. L is what? 50 and X is 10 and plus 1. Now 800 ये हो गया आपके पास 850 plus 11. Now ये क्या बन जाएगा आपके पास 861. तो क्या 861 आपके पास है? नहीं, वो तो 860 है. तो ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं है. अभी हम सी के साथ ट्राई करते हैं. तो MMDLX. M याद रखो, yes 1000 plus 1000 plus D is what? 500 plus L क्या है? 50 plus 10. तो ये हो गया आपके पास 2000 550 plus 10 that is 560. तो ये कितना बन जाएगा? 2560. क्या हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये ऑप्शन है. सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. Next question is sum of place value and face value of digit 5 in this number. So number is 2, 3, 6, 5, 4, 8, 2, 1. सबसे पहले इसका हम place value देखेंगे. This is ones, this is tens, this is 100, this is 1000, this is 10,000, right? This is lakh, this is 10 lakh and this is crore. Now we need to find the place value and face value of digit 5. अब place value क्या है 5 का? That is how many zeros? 1 2 3 4, right? So 1 2 3 4.
प्लस यू नीड टू फाइंड सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू तो वही रहता है, फेस वैल्यू इज द वैल्यू इटसेल्फ, तो इट विल बी 5. नाउ इफ व्हेन यू विल ऐड, तो 5 will go here, then how many zeros? 1 2 3 and 5. So let's check, do we have this answer in our options? Yes, so A will be your correct answer. बाकी तो ये ऐसा वाला आंसर है ही नहीं है, so option A will be your correct answer. अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द कॉमास आर इंसर्टेड आफ्टर एवरी 3 digits स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, राइट, मिडल और नन ऑफ दिस. अगर मैं कोई भी नंबर लेट करूँ लाइक 3 3 5 0 4 4 4, ओके, तो अगर आपको बोला जाए कि इस नंबर को अरेंज करो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, तो वहां पे हम क्या करते हैं, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, बट फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड, फ्रॉम लेफ्ट साइड वी हैव स्टार्टेड, राइट. सो यहाँ पे भी एक कॉमा आ जाएगा. तो ऑप्शंस क्या रहेंगे? लेफ्ट यस, राइट से तो नहीं था, मिडिल से भी नहीं था, और नन ऑफ दीज भी नहीं है. सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है, ये हमारे पास नंबर हैं जिनका नाम है P Q R S. तो सबसे पहले हम P नंबर देखते हैं. तो वो नंबर क्या है? 3 5 0 4 2 5 8. इसमें सबसे पहले आप डिजिट चेक करो कितने हैं. 2 है ना, 2 2 2 और 1. तो ये कितने हो गए? 7 डिजिट्स हैं, राइट. अभी बाकी नंबर्स में देखते हैं. Q में क्या है? Q है 3 5 0 4 2 0 4. हाउ मेनी डिजिट्स? 2 2 2 1. सो यहाँ पे भी क्या है? 7 डिजिट्स हैं. ओके, नाउ R में क्या है? नंबर है 3 5 0 4 4 3. तो डिजिट चेक करते हैं पहले, फिर उसका देखेंगे कि नंबर कैसे अरेंज्ड है. तो 2 2 2. यहाँ पे तो 6 डिजिट है. 6 डिजिट है मीन्स हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है. तो मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है. ठीक है, तो आपकी जो सीरीज है, अब ऑप्शन में चेक करो तो RSQP, तो R नंबर हो सकता है, बी में भी आ रहा है, तो मीन्स सी और डी ऑप्शन तो कट हो जाएगा. मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑलवेज गो फॉर द एलिमिनेशन मेथड, लेकिन हम एस को चेक करना पड़ेगा. तो इसके डिजिट्स देखते हैं. 3 0 5 4 1 0 8. यहाँ पर डिजिट्स कितना है? 2 2 2 1. सो 7 डिजिट्स अगेन, राइट. अब लेकिन हमें ये वाला ऑप्शन आर वाला फर्स्ट ऑप्शन तो है. अब नेक्स्ट है एस या पी में चेक करना पड़ेगा सिर्फ, है ना, एस और पी में. असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स क्या करने पड़ते हैं? स्मॉल से बड़े डिजिट की तरफ जाना पड़ता है. तो 3 0 0 क्या है? स्मॉल. यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट लाइक 5 नंबर को अरेंज किया गया, तो 5 पी ऑप्शन तो नहीं हो सकता. सो एस ऑप्शन, लाइक वी हैव अरेंज्ड ऑल द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? ए. सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. सो ऑलवेज गो फॉर द एलिमिनेशन मेथड एंड डोंट वेस्ट योर टाइम. Now question number 7. Which of the following option represent the best estimate? आपके पास नंबर क्या दे रखा है? 3 5 4 6 5 4, और उसको आपने एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 100 पोजीशन पे क्या नंबर है? 6. तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको एस्टिमेट बोला जाए नियरेस्ट 100, तो आप उसके इमीडिएट राइट वाला नंबर देखोगे. अभी वो क्या है? 5. अगर वो 5 या क्या होगा ग्रेटर देन 5, तो आपको जो डिजायर्ड नंबर है जहां पे आपको एस्टिमेट करना है उसको क्या करोगे? +1 से चेंज कर दोगे. तो अब फाइनल नंबर क्या बन जाएगा आपका? 3 5 4 6 + 1 7, और इन दोनों को क्या कर देंगे हम? 0 0 में कन्वर्ट. तो अगर हम इसको नंबर को रीड करेंगे अब, तो क्या बनेगा? ये लाइक यस 3,54,700. तो डू वी हैव दैट ऑप्शन? 3,54,600 ये तो नहीं है. 3,54,700 यस, और बाकी क्या है? 640 ये तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड 650 ये भी नहीं है. सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगफुल रोमन न्यूमेरल? ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रोमन न्यूमेरल के रूल्स पता होने चाहिए. तो लेट्स चेक विद द ए ऑप्शन. ठीक है, तो CMLXII. अगर मैं इस नंबर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो M क्या होता है? M आपके पास 1000 होता है. ठीक है, तो 1000 है M.
अब सी उसके कौन सी साइड पे लिख रखा है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे लिख रखा है। इट मीन्स 1000 में से क्या माइनस हो रहा होगा, यस 100, वेरी गुड। सो 1000 में से 100 माइनस करोगे तो ये क्या बन गया आपके पास 900, गुड। नाउ प्लस, अब एल एक्स, एल क्या होता है आपके पास, दैट इज 50, ओके। और अभी ये एक्स कौन सी साइड पे लिख रखा है उसके, यस राइट साइड पे, तो नंबर क्या हो रहा होगा, +10 ऐड हो रहा है, 0 और 6 तो +60। और इन दो 2 का क्या करेंगे, लाइक 2, 1 और 2, राइट। तो ये क्या बन गया आपके पास 962, ए ऑप्शन, तो एक वैलिड नंबर है। नाउ अब हम चेक करेंगे, लेट मी इरेज दिस, ओके, इसको हम इरेज कर देते हैं सो दैट वी गेट अ स्पेस। अब हम करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, सी एम डी एक्स आई आई, फिर से ब्रेक करते हैं, तो ये पार्ट तो हमने पहले से किया है 900। अब इसमें क्या है डी, ओके, तो डी आपके पास क्या रहता है 500, और इन दोनों को ले लोगे तो क्या होगा 10 11 12, तो 12, तो 9, ये आपका 1400 +12, तो ये कितना हो गया 1412, ये भी आपके पास क्या है वैलिड नंबर है। सी चेक करेंगे, सी के लिए हमारे पास स्पेस है, तो सी एम डी एल एक्स। अब सी एम को ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर ही रखा है, तो 900 प्लस डी, डी क्या होता है मैंने अभी आपको बताया 500, एल क्या होता है 50, और ये क्या होता है एक्स क्या होता है 10, तो 900, ये कितना हो गया आपके पास 1400, और ये कितना हो गया 60, तो 1460, ठीक है। ये भी क्या है एक वैलिड नंबर ही है, इसका भी हम बी का भी आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, इस 1412, सारे के सारे क्या है और वैलिड नंबर है, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका करेक्ट, दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 9, a Roman numeral can be repeated at most time in a number। सबसे पहले आपको तो at most का मतलब समझना है। at most का मतलब होता है कि मैक्सिमम टाइम आप एक नंबर को कितनी टाइम्स रिपीट कर सकते हो रोमन न्यूमरल्स में। तो रोमन न्यूमरल्स का एक रूल है कि आप कोई भी नंबर हो उसको सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम रिपीट कर सकते हो, दैट इज 3। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Now question number 10, which of the following option is true about the numbers shown on the given abacus? Okay, again we have our options, but सबसे पहले abacus पे देखते हैं कि क्या number show हो रहा है। So here we have a 3 beats, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, here 4, then 4, here 3, here 3 and 2। So final number हमारे पास क्या हो रहा है 3 4 4 3 3 2। Let's box it, ठीक है, अभी ये हमें काम आएगा। तो नंबर क्या है, नंबर इज, अगर इसको रीड करेंगे तो नंबर क्या बन रहा है, इट्स 3,44,332, बट व्हाट दे हैव रिटन, इट्स रिटन 33, सो ए ऑप्शन तो नहीं है। नेक्स्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट एट 1000 प्लेस। अब 1000 प्लेस पे देखेंगे तो दिस इज 1000 प्लेस, अब इसके आगे कितने जीरोज होने चाहिए 1 2 3, बट दे हैव हाउ मेनी जीरोज 4, तो अभी बी ऑप्शन भी नहीं है। The number become 34300 when it's rounded off to nearest hundreds। तो nearest 100 का मीन्स आप 3 लोगे, 3 का, yes, next immediate नंबर देखोगे तो वो क्या है 3, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो राउंड ऑफ करके क्या आएगा 34300। तो लेट्स सी ये नंबर है क्या, नहीं, नाउ दे हैव 3 zeros, बट हमारे आंसर में कितना है 2 zeros, तो सी ऑप्शन भी नहीं है। तो डी क्या है, नन ऑफ दिस, यस, तो कोई भी स्टेटमेंट क्या था, ट्रू नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर इज 95065, ठीक है, और आपको इसको राउंड ऑफ करना नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000, तो सबसे पहले हमें वो डिजायर्ड नंबर क्या है 5। नाउ यू नीड टू चेक इज द इमीडिएट डिजिट्स ऑन द राइट साइड, तो वो क्या है 0 है, तो 0 है तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज लेस देन 5, ओके, तो देयर विल बी नो चेंजेस, ओके, देन आंसर विल बी 9 5 and how many zeros 1 2 and 3, 1 2 and 3। let's check, do we have this number in our option, yes, so D will be your correct answer, right? So question number 12, which of the following numeral represent 894? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, राइट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रोमन न्यूमरल्स के कुछ रूल्स भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लो, तो क्या आएगा 800 प्लस 90 प्लस 4, ओके। जब ऐसा लिख लिया, अब 800 बनेगा कैसे, ठीक है, हमारे पास m होता है 1000, राइट, 1000 का तो हमें चाहिए नहीं है यहाँ पे, और d होता है हमारे पास 500। अब मैं 500 में अगर 100 प्लस 100
प्लस 100 कर दूं तो कैन वी गेट द 800? यस। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डी लिख लेंगे और 100 इज इक्वल टू क्या होता है इन रोमन न्यूमेरल सी। तो यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू राइट सी? 3 टाइम्स, 1 2 3, तो हो गया 800। अभी 90 करना है तो सी हमारे पास 100 है, ठीक है। हमें इसमें से 10 माइनस कर देंगे, तो माइनस के लिए हमेशा आप कौन सी साइड पे आओगे? यस, लेफ्ट साइड पे। तो हम पहले क्या 10 माइनस करना है तो एक्स सी, तो ये भी हो गया। यहाँ से क्या बन गया 800 और यहाँ से क्या बन गया 90 और 4 कैसे बनाओगे? यस 3 आपके पास क्या होता है 5 रहता है ऐसे, और उसमें से 1 माइनस कर दो। 1 माइनस के लिए मैंने आपको बताया कौन सी साइड पे जाओगे? लेफ्ट साइड पे, राइट। तो क्या ये बन गया 4। तो इस तरीके से अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, क्या ऐसा कुछ है हमारे पास? डी सी सी एक्स सी 1 4, यस। तो ऑप्शन डी ही क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको जो भी गलत होगा वहां पे उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो हम ए ऑप्शन में देखते हैं, तो क्या है 5 4 3 2 1। इट मीन्स 5 के आगे कितने जीरोज होने चाहिए? 1 2 3 4। तो क्या है 1 2 3 4 है। 4 के आगे 3 है, 3 के आगे 2 जीरोज है, यस। 20 के आगे 2 के आगे 1 जीरो होना चाहिए, है। 1 के आगे कुछ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल है सही। नाउ 93065, तो 9 के आगे कितने जीरोस होने चाहिए? 4, 1 2 3 4, ओके। 3 के आगे 3 जीरोस, 60 के आगे 1 जीरो और 5 के आगे बिकॉज दैट्स अ 1 प्लेस, तो ये भी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। नाउ अगला वाला 1, इसके आगे डिजिट कितने? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। 8 के आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 500 के आगे 2 जीरोस और हैं, 40 के आगे 1 है और ये भी सही है। नाउ लेट्स, एक ही ऑप्शन बचता है, लेट्स चेक। अब 8 है, ओके। तो क्या रहेगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, ये तो यहीं पे गलत हो रहा है बिकॉज 8 के आगे यहाँ पे क्या 5 डिजिट्स है, यहाँ पे 5 जीरोज होने चाहिए, तो जो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा इस केस में आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब हमें बोला गया है कि सक्सेसर करो 7 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो वी नो दैट डिजिट्स हमारे पास होते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो लार्जेस्ट डिजिट क्या है 9 है, इसी को हम 7 टाइम्स लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सक्सेसर करना है तो क्या करोगे +1 कर देंगे, देन 9 + 1 0 1, 9 + 1 0 1, 9 + 1 0 1, 9 + 1 0 1, 9 + 1 0 1, 9 + 1 0 1, and finally 10. Let's see how many zeros we have. 1 2 3 4 5 6 7, 7 zeros. 7 zeros means how many? Like 1 crore, right? And 1 crore is equal to, that is 10 million. ओके नाउ अभी हम ऑप्शन में चेक करेंगे, डू वी हैव 10 लाख तो नहीं था, 10,000 भी नहीं था, यस 10 मिलियन। सो ऑप्शन क्या रहेगा आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट। सो डिजिट क्या है हमारे पास 7 3 4 एंड 5, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको स्मॉलेस्ट बनाना है, राइट। तो स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सारे डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। बट दे ऑल्सो वन कंडीशन एटलीस्ट वंस, कि अगर एक डिजिट लोगे उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार आप रिपीट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट डिजिट फर्स्ट। सो क्या आएगा 3। अब मुझे लगता है कि स्मॉलेस्ट नंबर है, हमें स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाना है, राइट। तो हमें स्मॉलेस्ट डिजिट को ही रिपीट करना पड़ेगा, तो 3 3, now we can arrange according to ascending order. So now 4 5 and 7. So do we have this answer in our option 3 3 4 5 7? yes. तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। Question number 16, which of the following options show the successor of the number shown on the given abacus? तो पहले abacus read करते हैं, तो how many beads we have? 1 2 3 4 5 6, so here we have 6, here 1 2 3 4, okay, here 2, here 1 2 3 4, here 2 and here no any, so it will be 0, okay. So number क्या बन रहा है हमारे पास, let's write down here 6 4 2 4 2 0, और इसका क्या करना है सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स यू हैव टू ऐड 1, सो फाइनल नंबर विल बी 6 4 2 4 2 1।
Do we have this number in our option? Yes. So C will be your correct answer. Now question number 17. In the number, like number is 8, 9, 5, 4, 3, 5, 2. The digit is at 100,000 place. Okay, 100,000 place है तो ये बात कर रहे हैं किसका? इंटरनेशनल सिस्टम का. ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम में we know that after 3 digits we are going to put commas like this and this. Now 100,000 place क्या होगा? This is ones, this is 100, this is tens, 100, this is 1000, this is 10,000 and this is 100,000, right? तो आपका डिजायर्ड नंबर क्या है? दैट इज 9. तो ऑप्शन में 9 है. यस, तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. 7 crore 36 lakh 33,525 is written as. Okay, so here we have option. वही आपको सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को नहीं भूलना है, राइट? सो हियर 7 करोड़ 777 तो सब में आ रहा है. 36 लाख यहाँ पे भी है, 36 लाख यहाँ पे भी है, बट यहाँ नहीं है तो ये डिलीट हो गया, और यहाँ पे भी नहीं है तो डिलीट हो गया. नेक्स्ट, अब आगे चेक करते हैं. दोनों ऑप्शंस बचे हैं, इन देखते हैं कि आपका ऑप्शन ए होने वाला है या बी होने वाला है. तो 30 7 करोड़ 36 लाख 33,000, 36 लाख 33,000, 35,000. सो बी तो नहीं है. सो फाइनल में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहा है? ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ये सारी ऑप्शंस हमारे पास गिवन है और आपको बताना है सही वाला कनेक्शन या सही वाला करेक्ट ऑप्शन क्या है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? 100 हंड्रेड्स. तो हंड्रेड्स का मतलब क्या है कि वी आर गोइंग टू ऐड 2 zeros, राइट? अब इसको रीड करोगे तो क्या आएगा? दिस इज 1 10 100 1000 10,000. तो ये 10,000 नॉट अ 1000, ये तो गलत हो गया. नेक्स्ट क्या है? बी ऑप्शन. 1000 लिखा है और 100 भी लिखा, तो 1 2. अब इसको रीड करोगे तो क्या आएगा? 1 10 100 1000 10,000 एंड 100,000. ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही है. नाउ सी क्या है? 1 मिलियन. ओके, तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 लाख. सबसे पहले 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं? तो 1 लाख में होता है 5 zeros. 1 2 3 4 5. नाउ लेट्स रीड दिस अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम. तो क्या होगा? 1 10 100 1000 10,000 और 100,000. तो 100,000 तो नहीं लिखा है यहाँ पे, इज कॉल्ड 1 मिलियन. तो ये तो ऑप्शन हो गया करेक्ट, रॉन्ग. ना लास्ट क्या है? 1 करोड़. 1 करोड़ में कितने जीरोस होते हैं? यस, डू यू नो? यस, 7 zeros. 1 2 3 4 5 6 7. अब इसको रीड करेंगे अगर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड 1 2 3 और यहाँ पे. लेट्स रीड इट. तो ये क्या है? 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन एंड दिस इज 10 मिलियन. ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या लिख रखा? 100 मिलियन. तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग. तो फाइनली हमारा ऑप्शन जो बन रहा है दैट इज B will be your correct option. Question number 20. The place value of a digit at 10,000 place in the greatest 6-digit number. हमारे पास ये डिजिट दे रखे हैं, तो हमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर पहले बनाना. सबसे पहले फोकस तो आपका इन डिजिट्स पे ही रहना चाहिए. 3 5 2 0 1 8. अब वी नो दैट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सभी डिजिट्स को किस में अरेंज करना पड़ेगा? यस, यू आर राइट. यस, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे आ जाएगा 8, then of course 5, then 3, then 2, then 1 and 0. अब को जो भी नंबर यहाँ पे 10,000 प्लेस पे है, तो कौन सा 10,000 प्लेस पे? 1 10 100 1000 10,000. तो 10,000 प्लेस पे कौन है? 5 है. अब इसका प्लेस वैल्यू बताना है. प्लेस वैल्यू क्या है? कितने जीरोस उसके राइट साइड पे हैं? तो 1 2 3 4 है ना, ये डिजिट्स है 1 2 3 4. तो क्या ऐसा कुछ नंबर हमारे ऑप्शंस में है? हाँ, तो इट्स क्लियरली विजिबल कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है. So students, today we have finished with the mathematical reasoning section. So stay tuned for the next video for the next section, that is your everyday mathematics. Till then, goodbye.